forever. I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 9 of your class 4, that is types of house. You know, everyone needs a house to live in to protect them from climate like rain, hot and cold. So there are different types of houses. In urban areas we saw kacha house. In rural areas we saw kacha houses, and urban area we saw pakka houses. Animals also need a house to live in. Cow live in a shed, and dog live in a kennel. Likely the horse live in a stable, and lion live in a den. Let's read the name of their houses. Where does they live? A cow live in a farm or a shed, cow shed. You can write cow shed or farm, anything. A horse live in a den. A dog live in a kennel. Ants live in a ground hole. The ant lives in a ground or in any furniture it can live. A rabbit live in a burrow. It is under the ground. A horse live in a stable. The name of the house of the horse is stable. Let's read further. People in different parts of the world build different types of houses. जो different parts में है इंडिया के वर्ल्ड के, तो उसमें लाइक इंडिया, अमेरिका और एनी विलेज और रूरल, मतलब अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, सबके अलग अलग हाउसेज होते हैं. वो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड द टेम्परेचर. The location and the climate of a place determines the type of building material used to construct houses. क्या डिपेंड करता है हाउसेज का मटेरियल पे, मतलब लोकेशन कैसी है. अगर विलेज है तो कच्चा हाउस भी बना सकते हैं, और अगर टाउन्स एंड सिटीज है तो ओवर देयर वी सी या पक्का हाउसेज. और जैसे कोल्ड रीजन्स है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का हाउसेज होता है और डिफरेंट मटेरियल यूज होता है वहाँ पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन विलेजेस. हमें विलेजेस में कैसे कैसे हाउसेस देखने को मिलते हैं. In kacha houses, we saw kacha houses in the villages are mostly found in villages. They are made of mud. किस चीज से बने होते हैं वो? Mud से, straw से, dry leaves से. Their roofs are made of locally available materials such as straws, bamboos and palm leaves. किस चीज से उनकी रूफ बनी होती है जो कवर करती है वॉल्स को ऊपर से? वो बनी होती है straw से, bamboo से और palm leaves से. These houses often cannot withstand harsh. वो क्या करता है, वो ज्यादा दिन तक पक्के नहीं होते. वो लोग बहुत ज्यादा वेदर के साथ वो गिर भी सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं. harsh weather conditions like heavy rainfall or natural calamities like earthquake or flood. जब कोई ज्यादा रेन होती है तो कच्चा हाउसेस डैमेज हो जाते हैं. लाइक फ्लड भी हुआ तो वो भी बह जाते हैं उसमें, अर्थक्वेक्स आए तो गिर जाते हैं उसमें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन सिटीज. हमें सिटीज में कैसे हाउसेस देखने को मिलते हैं. Houses in cities are built of bricks, iron, wood, cement and so on. किस चीज से बने होते हैं हाउसेस सिटीज में? ब्रिक्स से, सीमेंट से, स्टील से, आयरन से, वुड से. Such houses are called पक्का houses. इन हाउसेस को हम क्या कहते हैं? पक्का हाउसेस कहते हैं. अब पक्का हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन अ कच्चा हाउस. पक्का हाउस क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. कच्चा हाउसेस से वो इजीली गिरता नहीं है. वेरी बिग हाउसेस आर कॉल्ड बंगलोज. जो बड़े हाउसेस है उनको क्या कहते हैं? वी कॉल देम बंगलोज. सो due to shortage of space in cities, many people also live in multi-stories building. In cities you can see वहाँ बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, तो वो कहाँ पे रहते हैं? वो लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में रहते हैं. वो दैट आर कॉल्ड लाइक दे आर लाइक फ्लैट्स एंड डिफरेंट स्टोरेज बिल्डिंग. ईच स्टोरेज बिल्डिंग हैज मेनी फ्लैट्स और अपार्टमेंट. जो एक बिल्डिंग होती है उसमें बहुत सारे घर होते हैं, वो क्या कहते हैं? फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स. Very tall building with many storied are called skyscrapers. जो बहुत ज्यादा टॉल बिल्डिंग होती है, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? skyscrapers. Which American city is called the city of skyscrapers? The American city is called the city of skyscrapers. किसको कहते हैं? कौन सी अमेरिकन सिटी है जिसको हम skyscrapers कहते हैं? The city of America it is. This is your homework. You have to tell us which city of the America is called the skyscrapers. In very cold areas. अब आपको कोल्ड एरियाज में कैसे हाउसेस देखने को मिलते हैं? Let's talk about it.
People living in very cold areas like the North Polar region build special dome. जो नॉर्थ पोलर रीजन में पीपल रहते हैं वो स्पेशल डोम लाइक हाउसेस बनाते हैं. शेप्ड हाउसेस कॉल्ड इग्लूस. उनको क्या कहते हैं, डोम शेप्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वी कॉल देम इग्लू. इन पोलर रीजन्स यू कैन सी द इग्लूस ओवर देयर. An igloo is made of blocks of snow or ice snagged on each other. वो किससे बने होते हैं, blocks of snow के blocks से बने होते हैं, और ice stacked on each other, ice की वजह से भी बने होते हैं वो. This gives the house the shape of an upside down bowl. कैसी शेप होती है उनकी, अपसाइड डाउन बॉल, मतलब एक बॉल को आपने उल्टा करके रख दिया, ऐसी शेप होती है उसकी. Now, igloos are kept very warm by lining the walls with the hides of dead animals. Igloos कैसे गर्म रहते हैं कोल्ड एरियाज में, उनको जो एनिमल डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से, लाइनिंग से हम लाइन कर देते हैं. People also burn seal oil to keep themselves warm. People कौन सा ऑयल बर्न करते हैं, सील ऑयल. सील एक ऑयल, सील ऑयल होता है, वो वहाँ पे बर्न करते हैं उसको वार्म रखने के लिए. The entrance to the igloo is through a small tunnel. Entrance कैसा होता है igloo का, एक small tunnel सा होता है, उसमें enter करना होता है, ऐसा entrance होता है उसका. This prevents the heart from escaping. Eskimos also called Inuits live in such houses. इनको क्या कहते हैं, वो किससे prevent करते हैं, this prevent the heat from escaping. उसको corrected here, it is heat. वो हीट निकलने से उसको प्रोटेक्ट करते हैं जिससे हीट बाहर ना जाए. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनुइट्स. इसको क्या कहते हैं, इनुइट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन हिली एरियाज. हिली एरियाज में हमें कैसे हाउसेस देखने को मिलते हैं. हाउसेस इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ वुड. जो हाउसेस हिली एरियाज में बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, यू हैव सीन द वुड हाउसेस ओवर देयर व्हेन यू गो फॉर अ पिकनिक. दे हैव स्लोपिंग roofs और द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली. उनकी कैसी रूफ्स होती है, स्लोपिंग रूफ्स होती है, जिसपे अगर स्नो गिरे तो स्लाइड होके नीचे गिर जाए. यू कैन सी सच हाउसेस इन शिमला, दार्जिलिंग एंड नैनीताल. आपको कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसे हाउसेस, शिमला में, दार्जिलिंग एंड नैनीताल में. इन माउंटेनरी एरियाज लेट्स रीड अबाउट इन रेनी एरियाज. जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे कैसे हाउसेस होते हैं. Some places receive heavy rainfall. कुछ places पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. In such places, the houses have sloping roofs to let the rainwater run off easily. उनकी भी roofs कैसी होती हैं, sloping roofs होती है जिससे rainwater easily run away कर सके, इस roof पर टिके ना. These houses are built on strong bamboo pillars called stilts. किस पे बने होते हैं ये houses, strong bamboo pillars पे बने होते हैं. They are called stilts. Which are few feet above the ground. वो कितने ऊपर होते हैं, few मतलब कुछ फीट ऊपर होते हैं ग्राउंड से. वो बैम्बूस पिलर्स पे बनते हैं, देन उनका फ्लोरिंग होती है, देन वॉल्स होती है, देन रूफ्स होती है. In this way people remain safe from flood, water as well as insect. इस टाइप में फिर people किससे सेफ रहते हैं, किससे, इंसेक्ट से, लाइक स्नेक, और या फिर वाटर जो ज्यादा रेनी सीजन में होता है, फ्लड से भी. पीपल यूज लेडर्स टू रीच द एंट्रेंस टू दीज हाउसेस. पीपल क्या यूज करते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से तो बहुत ज्यादा ऊपर होता है, उन्हें ऊपर हाउस में एंटर करना होता है. दे यूज लेडर्स, सीढ़ियों का यूज करते हैं. स्टिल्ट हाउसेस आर कॉमन इन मेघालय एंड असम. ये हाउसेस कहाँ पे कॉमन है, दे आर कॉमन इन मेघालय. मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है और असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है. सो in this picture you can see a picture of a igloo where Eskimos live. Now let's move to the next page, the green part of this chapter. Green buildings are environment friendly buildings. Green buildings क्या होती हैं, environment friendly buildings होती हैं. Recyclable materials are used to build them. तो environment friendly कैसे होती है, because जो एक recycling material होता है like wood या anything, वो उसमें use होता है साइकिल करने में. सच बिल्डिंग्स ऑल्सो है प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. उनमें क्या होता है, ऐसी एक जगह होती है, प्रोविजन होता है जो उसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को सेव कर सके. इन कोस्टल एरियाज में हमें कैसे देखने को मिलते हैं, कैसे हाउसेस देखने को मिलते हैं. पीपल लिव नियर द सी और प्रोन टू फ्लड.
जो पीपल सी के पास रहता है, कोस्टल एरिया ज्यादा प्लेस नियर द सी, तो वो ना प्रोन होता है किसके, फ्लड की वजह से, मतलब फ्लड का डर हमेशा रहता है वहाँ। Thus they built कच्चा houses made of wood, और coconut leaves। तो इसलिए वो कच्चा हाउसेस बनाते हैं, जो क्योंकि फ्लड ही आता है वहाँ, वो टूटने तो होते ही है, तो कच्चा हाउसेस बिल्ड करते हैं टू विद मड, रीड, वुड और कोकोनट लीव्स से। These houses have a raised wooden platform supported by wooden pillars। कैसे होते हैं उनके raised wooden platform? वो wooden pillars लगाते हैं पहले, फिर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, देन वो अपना हाउस बनाते हैं। लाइक इन रेनी एरियाज, इन वेरी हॉट प्लेसेस। हमें हॉट प्लेसेस में कैसे हाउसेस मिलते हैं? इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान पीपल बिल्ड मड हाउसेस विद थिक वॉल्स। राजस्थान में आपने देखे होंगे कैसे हाउसेस होते हैं, मड हाउसेस होते हैं। वो किस वजह से, कैसे होता है? थिक वॉल्स होती हैं, उनकी बहुत ज्यादा थिक मोटी वॉल्स होती हैं। दीज वॉल्स एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट एंड कीप द हाउस कूल। वो क्या करते हैं, वो वॉल्स एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या मतलब कि इतनी एब्जॉर्ब कर लेती है कि ज्यादा अंदर तक आए ना, और हाउसेस क्या रहते हैं, वो दे आर कूल। दीज हाउसेस हैव हाई सीलिंग एंड द फ्लैट रूफ्स। उनकी जो सीलिंग होती है, उनकी रूफ्स होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है और फ्लैट होती हैं, जिससे सन एक्सपोजर ज्यादा ना हो। पीपल स्लीप आउटडोर एट नाइट ऑन द फ्लैट रूफ्स। फिर उन फ्लैट रूफ्स पे पीपल क्या करते हैं, दे स्लीप एट द नाइट टाइम, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है एट नाइट। Let's read about special houses. What are special houses? Houseboat. Houseboat क्या होती है? Which runs on the water. जिसमें हम water के अंदर रह सकते हैं. The place is called houseboat. In places like Srinagar, we find houseboat on the Dal Lake. जो आपने देखा श्रीनगर में डल लेक है, वहाँ पे हमें हाउसबोट देखने को मिलती है। These are houses made on boats and are known as floating roofs। वो जो houses होते हैं, in this picture you can see a houseboat, तो वो किससे बनते हैं, वो floating houses को कहते हैं उनको। और वो किस चीज से बने होते हैं, वो नॉर्मल वुड से बने होते हैं, या स्ट्रॉज वगैरह से। They all have all the facilities of a modern house। उनमें क्या क्या होती है, सारी फैसिलिटीज होती है जो एक मॉडर्न हाउस में हमें देखने को मिलती है। Houseboat are also popular in Kerala। Houseboat आपको कहाँ देखने को मिलती है? Have you ever went to Kerala? Over there you can see a houseboat also। Here they are called catuvillums। उनको क्या कहते हैं? Catuvillums कहते हैं। Over there केरला में they are called catuvillums। Tree house। What do you mean by tree house? Have you seen the tree house? Yes, जहाँ पे आप कभी आपने खेले होंगे इन फॉरेस्ट, हैव यू हैव सीन द ट्री हाउस, जो वाइल्ड एनिमल्स से बचाते हैं। अ ट्री हाउस इज फाउंड इन फॉरेस्ट। कहाँ पे मिलते हैं हमें ट्री हाउसेस? फॉरेस्ट में। इट इज मेड ऑफ वुड एंड बिल्ड हाई अप ऑन द ट्री। वो किस चीज से बने होते हैं? वुड से बने होते हैं और हाई होते हैं, मतलब ग्राउंड से हाई होते हैं बेम्बूज की सपोर्ट में। अ ट्री हाउस हैज अ सिंपल वन रूफ डिजाइन। उनका एक सिंपल वन रूफ डिजाइन होता है, मल्टी स्टोरेड नहीं होते वो। ट्री हाउसेज आर इको फ्रेंडली एज दे डू नॉट रिक्वायर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ट्री हाउस क्या होता है, बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली होता है, जिससे हमें हाउसेस को ट्रीज को हमें कट नहीं करना पड़ता, हम ट्री पे ही हाउस बना लेते हैं। दीज हाउसेज आर अ टेम्परेरी रिट्रीट फॉर टूरिस्ट। जब जैसे आप टूरिस्ट हो, आप कहीं जा रहे हो घूमने, तो यू आर द टूरिस्ट, तो आप टेम्परेरी वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो in tree houses। Now let's read about movable houses। What are movable houses? Some houses can be moved easily from one place to another। They are called movable houses। The houses that can move from one place to another, they are called movable houses। जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली जा सकते हैं। A caravan। A caravan is a car or bus shaped A caravan can move from one place to another easily। Tent। What do you mean by tent? Tent क्या होता है? A tent is a house made of waterproof cloth or canvas। जो tent है वो एक हाउस होता है, किससे बना होता है? वो waterproof cloth से बना होता है और canvas से बना होता है। It can be easily folded and carried anywhere। वो कब क्या होता है, वो easily fold हो जाता है। We can carry them at our trip। हम ट्रिप पे उसे easily ले जा सकते हैं। Earlier tents were only used by nomads who moved from one place to another।
with their family, animals और other belongings. वो पहले अर्ली टाइम्स में कौन यूज करता था टेंट्स को? नोमैड्स जो होते थे वो वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते थे, तो वो अपने एनिमल्स के लिए भी अपनी फैमिलीज के लिए भी टेंट्स का यूज करते थे. टुडे कैंपर्स एंड हाइकर्स यूज टेंट्स फॉर लॉन्ग ट्रिप्स. अब कौन यूज करता है टेंट्स? कौन करता है? कैंपर्स एंड हाइकर्स, जो हाइक करने जाते हैं, जो ट्रैकिंग करने जाते हैं, दे यूज टेंट्स फॉर देयर ट्रिप्स. Now let's talk about caravan. What is a caravan? A caravan is a house on wheels. It is a movable house which can move from one place to another easily. The vehicles is made like a modern house. तो vehicle कैसे बने होते हैं? Modern house की shape में बने. Modern house होता है वो with one or two rooms and other facilities. उसमें क्या होते हैं? एक से ज़्यादा rooms होते हैं, सारी facilities होती है, washroom and another thing. It is also used for camping purposes. वो किस लिए यूज होता है? वो camping purposes के लिए भी यूज हो सकता है. You have seen in this picture that is a picture of a caravan which can move from one place to another easily. Let's talk about the fact bite of this chapter. A yurt is a tent-like structure built by nomads of Mongolia. In this picture, you can see a yurt. वो कौन बनाता था? वो nomads बनाते थे of Mongolia. मंगोलिया के जो nomads होते थे, they made yurt. It is a tent-like structure, टेंट की शेप में होता था. It is made of sheep wool. वो किस चीज से बना होता था? एक sheep की wool से बना होता था. It is very easy to collapse and reassemble a traditional yurt. वो बहुत ज़्यादा easy होता था उसे rebuild करने में, collapse करने में, या फिर कोई दोबारा से reassemble करने में, कुछ traditionally बनाने में. A yurt can be transported easily on animals. और yurt क्या होता था? वो animals के ऊपर हम easily early times में transfer कर सकते थे. So that's all for this chapter. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.